Whenever you are ready, you may gently open your eyes. All right, welcome back. So फर्स्ट पार्ट में जो भी डिस्कस किया, एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग टू शेयर? कुछ स्ट्राइक हुआ आपको which you thought you would like to share? Yes. Over here. So when we talked about the example where we switched off the fan and then just a second, sir. Yes. So when we spoke about the idea where we switched off the fan and then if we thought about the Big Bang process, so we can also think about the different current scenarios. Matlab, agar if we don't go back but we think about the villages which don't get electricity as we do, so I think that will also work because thinking about the Big Bang theory, the apes, so that is very difficult to relate for me. So if we are saving water, if we are we are thankful for anything that is around us, we can always relate it to the current situation where some people don't have it. Okay. So thank you for bringing this up because this is a very important point to understand. We are also studying this whole thing from the point of view of child psychology. So usually for children, they don't understand very well, or rather they do, but then they don't understand it from the point of wisdom. The concept of haves and have nots. हैव्स मतलब वो लोग जिनके पास में सब कुछ है, हैव जिनके पास कुछ है, एंड हैव नॉट्स मतलब जिनके पास में कुछ नहीं है. तो वो जो अंतर है वो यूजुअली छोटे बच्चों को दे अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइड एंड जेलसी. दे don't necessarily understand it from the point of view of wisdom. Okay, for them, because the wisdom part comes naturally. जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आप उनके अगर बहुत अच्छे दोस्त है, you give them something which is a little bit in excess, जैसे 5 चॉकलेट अगर आप एक बच्चे को दे देते हैं तो वो बांट देगा. A small child, a very small child who has not been influenced by us as adults. हम लोग जो उनको बताते हैं कि ये टिफिन किसी के साथ शेयर मत करना, या फिर अपनी चीजें अपने पास में रखनी चाहिए, ये सब जो कंसेप्ट है ये उनके दिमाग में अगर नहीं जाता है
So yes, they'll share everything, but if they have not been brought up like that, if they have been brought up with insecurities, so then they will not share anything. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो देन बीइंग टॉट के विलेजेस में ये नहीं है gives them a kind of a superiority complex, and we have had these kind of children in our school. हम लोगों ने देखा है उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस होते हुए. हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से अगर उनमें ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं की जाती है, सिंप्लिसिटी डेवलप नहीं की जाती है, तो अक्सर ऐसे होता है कि वो और ज़्यादा प्राउड होते जाते हैं या और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जाते हैं. सर आई वुड लाइक टू शेयर, जो हमारी स्कूल थी होली क्रॉस, तो सर हमको टीचर्स मतलब हमारी स्कूल विजिट के लिए लेके जाती थी, अंध विद्यालय, हैंडीकैप स्कूल्स एंड ऑल्सो ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम्स. तो वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा रोना आता था उधर, हम लोग रोते थे फिर. एंड देन आफ्टर the whole visit they used to tell us that see, you are very lucky, you go to your parents, hug them, tell them that thank you for giving me such a wonderful background, for everything whatever you have given me, like that. हम लोग बहुत रोते थे सर विजिट के टाइम पे. Okay, so that is experiential and that is empathy. तो yes, that sometimes works, and जो लोग sensitive है उन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. नॉर्मली ऐसे लोग बड़े होके दे ऑल्सो एंड अप बीइंग पीपल जो शायद आगे जाके वृद्धाश्रम खोलेंगे या फिर यू नो विल हैव सम काइंड ऑफ अ फैसिलिटी दैट केटर्स टू ब्लाइंड पीपल और हैंडीकैप पीपल. तो यस, उस केस में ये इसका बहुत फर्क पड़ता है. बट अगेन दिस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एंड वो एक्सपीरियंस भी उतना प्रोफाउंड रहना चाहिए, and it has to be in the direction of the outcome that you are planning. जैसे इस केस में again saving electricity doesn't come up. So I have one word, sir. So I was working in a school, very, very beautiful school. I was working, sir, very, very religious, sacred school. I was working. I found one experience over there, sir. We took the children for the picnic. So when we took the children for the picnic, in fact, sir, in the school, some RT children are there. Whatever rich the school is, RT children are to be permitted according to the jurisdiction by the government of India. So when we took the children for the picnic, one boy had brought 100 burgers with him, sir. That Australian food burgers. It is so expensive and it is very, very tasty, sir. So we observed this in the bus. Many children were eating the burgers, but the children who were from the poor family, their mama had asked them not to eat anything from anyone, sir. Means घर पर जो संस्कार होते हैं सर, मीन्स जो हमारे बचपन में जो हमारे माँ बाप ने संस्कार करके दिए, उन संस्कारों का दर्पण देखा सर मैंने. I was very, very surprised. Those children do not eat any burger from that boy, sir. Those 100 burgers went with him as it is after the picnic finished. Yes, yes. So the food saving is also and the knowing of the condition of any person, like a Karna knew that he is from a poor family, he has to acquire the complete knowledge and be the best. He became as best as Arjuna. So the same behavior I saw in those children. No one ate a single burger from that student, although he had 100 burgers with him. The matter was not of sharing the food. The matter was that the food was, it was an ecstasy. It was luxury. That food, some burger cost rupees 55, rupees 75. So their mama told not to eat such an expensive food. The children of the RTI saw that, sir. So I was very, very surprised, and to see the image of the rights that were made to us in our childhood, the same thing I saw in them, sir.
Yes, yes. But then what did they do with the burgers? Because if I think they were being given the burgers free of cost, right? No, sir. School had arranged the food for the children. Very, very expensive. Contract was given to the hotel for the food for the children. Yes. Okay. But So after. Okay. Yes, so sir. they were supposed to buy it as a packet, like Yes, the sir. trip That package. was yes, to distribute in the bus he brought, but children do not eat. School had arranged for the given the contract to the very famous hotel, and the hotel catering bus was at the destination where we were visiting. At that big religious place, the catering bus was waiting of the hotel. So inside the bus, that boy had brought to offer to everyone, but the children do not take. I was very, very surprised with this, sir. Yes, that food was saved. Thank you for sharing this. Most welcome, sir. All right. So yes, ये जो simplicity है, all this comes in very contextual basis. So depending on what the children are exposed to, their response will be in that direction. The boy must have felt upset. So that's what I think that clarifies your point, Bhuvneshwari ma'am, because it was more about a business than. But what about So the was boys' he feelings, selling sir? it or did he just bring it to offer? Was he selling it for 75 rupees? Selling, na? That's what he's saying. No. It was given as a packet in the trip. Like you have to buy, like how you pay for the trip and then you pay for the food, that kind of a thing. No, Acha. sir. He was saying that he just gave, no, just he brought for everyone. ऐसे ही लाया ना? He's saying that As only, a I think. sharing, I think. हाँ, as a sharing. Sharing लाया. He didn't नहीं, bring for sir, you charging. said they had to buy the packet. No, sir. Just for the sharing, to give free to the Achha. children. That is like that Achha. only, sir. So then what happened to the burgers? Because this is very important to understand, because we are also talking about saving food, and we are also talking about sharing it with less opportunate children and all that. So if the burgers got wasted, so then that is a wastage of food. That boy took that complete parcel with him, sir. That packet complete he took with him. After the trip was finished, one worker came from his van and he took that with him. Okay. I would like to add something. Can I? Yes, Divya ma'am. But what about that boy's feeling? I mean, अगर वो इतने प्यार से करेगा and उसको क्या feel हो? Because दिव्या मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. poor or rich. Okay. Wait a minute. हाँ. Now is it clear? Yeah. हेलो या सो ना वो बच्चे को क्या फील हो रहा होगा तब कि किसी ने मेरा बर्गर नहीं लिया, मैंने इतने प्यार से लाया. एंड बच्चों में ये नहीं रहता है पुअर और रिच का कॉन्सेप्ट. उनके लिए तो फ्रेंड्स मींस फ्रेंड्स ही रहते हैं. तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ करेगा क्या फिर? No, that would be the that concept wouldn't be there in the rich kid's head. It would be there in the poor kid's head. But yeah, I also have that same question. The child who has seen कि मैंने इतने सारे burgers लाए अपने दोस्तों के लिए, but then वो burgers नहीं लिए गए, तो what was the impact of that on the child's mind? Even sir, No, I can actually feel that. 1 minute, मतलब if I Bhuvneshwari had ma'am. got 1 minute, something. Meena ma'am. We are going step by step. yes, Bhuvneshwari ma'am, you can proceed. Ma'am, please go ahead.
मेरा बोलने का मतलब यही था कि फिर वो नेक्स्ट टाइम उसके अंदर वो फीलिंग नहीं रहेगी कि मैं किसी को कुछ दूं, लाइक वो थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा। या भुवनेश्वरी मैम। Yes, actually I could feel it कि अगर if I brought something and maybe उसने planning तो पहले रात से की होंगी ना, he must have packed the food। अगर वो pure innocence से ला रहा है, so अगर मैं उस बस में टीचर होती या फिर if I would have been there, then I would have initiated, मतलब cause क्या है, मतलब इतना उसको बहुत बुरा लगता, so I would have done something for that। इसमें अगेन मतलब वो वेस्ट भी गए होंगे मे बी उसकी वो बर्गर्स के एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट वगैरह अगर के वो बर्गर्स होंगे तो उतना तो पूरा वेस्ट चला जाएगा ना, पैक्ड वाला। तो जयप्रकाश सर ये बर्गर्स का क्या हुआ फिर? व्हाट इज द सस्पेंस? So nothing, that boy took that burger with him, sir, as it is. तो हाउ डिड ही फील अबाउट इट? मतलब ये जो पूरा सिचुएशन हुआ, उसके चेहरे पे क्या दिख रहा था? I do not notice that because I asked a senior sir. So that sir said, sir, do not interfere with the decisions of the children in the picnic. So I do not say anything. ओके। Yes. तो ये सारी चीजें हम लोग को ऑब्जर्व करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज वी नीड टू see an environment of the school, of the class is built when it is an environment। मतलब हम एक भी हिस्से को अगर निकाल देते हैं तो वो फिर environment नहीं बनता है, then it is just a few people। so इस केस में भी हम लोगों को दोनों चीजें देखनी पड़ती है। एंड देन अगेन वो जो बच्चा था जो बर्गर्स लाया था, उसके भी क्या माइंडसेट से वो लाया था, दैट इज आल्सो नेसेसरी टू स्टडी, because there are children who we have who would do this sharing के हिसाब से, and there are a few children who we have who would do this from the point of view of मैंने लाया, मैंने सबके लिए लाया, तो वो ऐसे that is अहंकार, that is pride। तो there are some children who do this के I have so many friends in the school and I want to give this to so many friends in the school, that is why they do it। and then there are those who say कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए तो ये हाथों का मैल है, जो हम लोग काफी बार सुनते हैं। तो वो भावना से अगर करते हैं कोई, तो then for them that is it is a side effect of pride, of घमंड। So yeah, this is a very good example of child psychology के काफी बार now depending on what happened, मतलब if you interact with these children तो we come to know more in detail। कभी कभी ऐसा होता है कि this behavior leads to the birth of classism। कि पहले उस क्लास में वो गरीब बच्चे और अमीर बच्चे का ऐसे ये नहीं था, भेदभाव नहीं था, और ऐसे कुछ चीज के वजह से वो भेदभाव आ जाता है sometimes। and there are times के the child learns it as a lesson in humility, as a lesson in simplicity के not necessarily everything that I think is good, that I think is everybody should follow, जरूरी नहीं है कि हर कोई उसी नजर से दिखता है। सो अगेन ये हम लोगों को तभी समझ में आएगा जब इसके ऊपर चर्चा होगी। देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट नो इफ इट इज फ्री, I can check and I can let you know। मेरे पास में वैसे वो डॉक्यूमेंट्री है, तो आई विल आल्सो अपलोड इट ऑन द गूगल ड्राइव, तो आप जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं। एक चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ करके जापानीज डॉक्यूमेंट्री है,
जहाँ पर एक टीचर ने एक क्लास के साथ में एक इस तरह से रिलेशनशिप तैयार किया कि वहां पर जो भी होता है रीजन से होता है। हर चीज के पीछे कुछ कारण है, हर चीज के पीछे कुछ सोच है, और वो सोच वो बच्चों को रिकग्नाइज करते आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया और वो 10 साल बाद समझा कि अच्छा मैंने तब जो किया था वो इस वजह से किया था। सो दैट एंटायर डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट दैट। वहां पर कुछ कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स है जहां पर वो जो टीचर है वो टीचर कुछ प्रोजेक्ट चलते रहता है तो वो प्रोजेक्ट से एक बच्चे को निकाल देता है कि यू वोंट बी एबल टू, मतलब आई वोंट अलाउ यू टू डू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ सम बिहेवियरल इशू, कि वो कुछ कहीं और कुछ करता है एंड उसको एज अ रिजल्ट यहाँ से प्रोजेक्ट से बाहर निकल देते हैं। तो क्लास के सारे बच्चे इंडिविजुअली वो टीचर को पिटिशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कि आप मतलब ठीक है उसने जो गलत किया वो गलत किया, मगर उसकी जो सजा है वो सजा उस गलत काम से रिलेटेड रहनी चाहिए ना। वाई आर यू पुलिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सो वी वांट हिम बैक इन द प्रोजेक्ट। तो बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं, दिस द चिल्ड्रन मस्ट बी लाइक 12-13 भी नहीं होंगे, दे मस्ट बी समवेयर बिटवीन 8 and 12 years old। तो उतने एज में इतनी मैच्योरिटी आना is possible only if you have dialogue, only if you have discussions। तो इन सब बातों पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। and it should be open, it should be unbiased and it should be without ego। तो ऐसा कुछ इवेंट होता है, ऐसी कोई ट्रिप होती है तो उसके बाद में जब ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं या ऐसे रिस्पॉन्सेस आते हैं तो देन देयर शुड बी हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस कि आपने जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया। एंड यू नो अगर if the child decided to get burgers for everyone, so what was his thought process behind it? If the child decided not to accept the burger, what was his thought process behind it? All these things। And then obviously this person, did they feel anything, did they not feel anything? क्योंकि अगर उसे महसूस नहीं किया हुआ कुछ भी इस बात का, तो then that is also surprising। 100 burgers going back and that much food being wasted and those many friends not taking my burgers, ये सारे अलग अलग levels है which are all very disturbing levels for a child। उस बच्चे को उसका impact पड़ना चाहिए उस एज में। what age are we talking about? ये कितने साल के बच्चे हैं? Sir, children of class of 5th, 6th, those small children, sir, 5th and 6th। Right। So Yes, if they would have been 8th and all, तो हम लोग सोच सकते हैं कि थोड़ा सा मेच्योरिटी वगैरह है, बट मतलब थोड़ा सा लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते थे। बट इस एज में 5th 6th में तो फिर भी सेंसिटिविटी होती है, मतलब बच्चे फिर भी महसूस करते हैं ये सब बातें। तो टिल द टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइनी पार्ट ऑफ दैट साइकोलॉजी कि वो क्यों हुआ पूरा इवेंट, क्योंकि हम लोगों के नजरिए से कोई चीज सही या गलत हो सकती है, बट देन वो हम लोगों का नजरिया है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। बट अ चाइल्ड एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। हर बच्चा हर चीज कुछ और तरीके से एक्सपीरियंस करता है, एंड वो तभी हो सकता है when there is a discussion over it, when there is a when people talk about it openly and freely। So yeah, if you get an opportunity, find out। and हाँ, so as I was saying कि ये जो है these are very contextual things। मतलब अगर किसी चीज या किसी टाइप का बिहेवियर अगर आपको जागरूक करना है बच्चों में, तो वी हैव टू नो
कि वो जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसमें इसका कुछ हिस्सा या कुछ रिलेशन या कुछ कनेक्शन हो, some kind of a connection. Like for example, you can build sensitivity through activities like taking them to vridhashrams, taking them to blind schools. हम लोग तो जॉब में लगने के बाद में, जॉब की जब इंटर्नशिप लग रही थी, तब हम लोग एक वृद्धाश्रम गए थे एंड स्टिल पीपल क्राइड. सो इट्स नॉट अबाउट एज एट ऑल कि हम लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने वी प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. वैसा कुछ नहीं होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग फील्स. तो ये सेंसिटिविटी की बात हो गई. बट देन जो ग्रैटिट्यूड होता है, वो ग्रैटिट्यूड कम्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस. एंड इफ यू वांट दैट ग्रैटिट्यूड टू ट्रांसलेट इनटू बिहेवियर, तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस उस बिहेवियर के रिलेटेड रहना चाहिए. अगर हम लोग लिटरिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्लीनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो if you want a direct experience, so you need to arrange for maybe a week of living with the people who pick up garbage. जो लोग कचरा उठाते हैं वो कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, उनके साथ में एक हफ्ते बच्चों ने रह के आना चाहिए. They should do that. एक हफ्ते तक के हर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि हम लोग ये रास्ता एक हफ्ते तक साफ रखेंगे. सो असेंबली का जो समय है, असेंबली के समय में सब लोग असेंबल होने के बदले में वो एक क्लास जाके दे कैन डू दिस एक्टिविटी. दैट विल बी देयर असेंबली. सो दैट इज हाउ द डायरेक्ट एक्सपीरियंस शुड बी. एनी thing to add here, question here? If you don't agree with me, so we can still discuss about it. I'm not saying that I'm right, but I'm just saying ke think about it in more perspective sense कि बच्चे क्या देख रहे हैं ये पूरे एक्सपीरियंस में, what are they see. जो एम्पैथी मैप वाला जो हम लोगों का कंसेप्ट था. सर उन लोगों को जल्दी मैच्योर करने के इसमें हम उनका बचपन तो नहीं छीन रहे ना, लेकिन हाँ, तो मेघना मैम, हम लोगों ने जो 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था कि द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी आर मेकिंग देम मैच्योर, द प्रॉब्लम इज कि दे आर ऑलरेडी मैच्योर. उनमें मैच्योरिटी होती है, बट उनके लिए कैसा है कि दे आर इम्पल्सिव. देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मतलब having an understanding of one's own emotions. तो उनके जो इमोशंस है वो इम्पल्सिव रहते हैं, जिसके वजह से दे टेंड टू ओवरस्टेप देयर मैच्योरिटी. उनमें समझ होती है. अगर आप किसी भी बच्चे को लड़ाई के बाद में पूछो कि क्या सही है क्या गलत है, वो फटाक से आपको उत्तर देगा. आपको बहुत ज्यादा डिग करने की जरूरत नहीं होती है. दे नो द आंसर. They know what is right, they know what is wrong. जो ethical है, जो unethical है, सब उन्हें पता रहता है. But उनके emotions इतने strong होते हैं कि काफी बार वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं उस moment में. That is the problem. So yes, the effect or the how do you say, the control of their emotions will increase over a period of time. वो एज से डेवलप होता है. बट द प्रॉब्लम इज के हम लोग उनकी मैच्योरिटी घटा देते हैं. वी किल दैट एंड दैट क्रिएट्स द issue that we see as the children grow old. A small child knows it is wrong to throw a piece of paper on the road. उनको पता रहता है कि ये गलत है. And they'll either pick it up or they will give it back to the person who threw it. ये बहुत नेचुरली करता है वो लोग. मगर हम लोग जब उनको एक बार करता है वो बच्चा, तो हम लोग बोलते हैं छी छी हाथ मत लगाओ उसे. या फिर हम लोग हाथ खींच लेते हैं. या फिर जो अगर वो वापस वो पेपर उसे देने के लिए जाता है तो वो उसे गुस्सा कर देता है, चिल्ला देता है.
तो हम लोग वो इंटरफियर कर रहे हैं वहां पर, तो हम लोग उनकी मैच्योरिटी घटा रहे हैं. ओके. सो हम लोग इस तरह से अगर इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम लोग ये सब चीजें अगर नेचुरली डेवलप होने देते हैं, जहां पर ग्रेटिट्यूड के केस में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मिसमैच, बिकॉज एज भुवनेश्वरी मैम पॉइंटेड आउट कि इतने सालों का नॉलेज या इतने मिलेनिया, इतने मिलियंस ऑफ इयर्स, बिलियंस ऑफ इयर्स का जो नॉलेज है, वो हमें ही नहीं है तो बच्चों को कैसे मिल सकता है? Like I cannot tell you what happened 3.6 billion years ago in January 3rd, because I don't have that knowledge. मैं नहीं था तब. तो हम लोगों को पूरा एक्यूरेटली नहीं पता है, हम लोगों को एग्जैक्टली एक्सपीरियंशियली नहीं पता है उतना एफर्ट कि मुझे एज अ क्रो मैग्नन कितना एफर्ट लगा होगा टू ट्राई टू सेव माई ट्राइब एंड स्टिल बिकम एक्सटिंक्ट. होमोसेपियंस ने मुझे फिर भी खत्म कर दिया, एंड आज होमोसेपियन जिंदा है, क्रोमैग्नन जिंदा नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स आई डोंट नो पर्सनली, एक्सपीरियंशियली आई डोंट नो. तो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट? तो उस केस में वी हैव टू टॉक अबाउट सेंसिटिविटी, वी हैव टू टॉक अबाउट एम्पैथी, एंड ये सब तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस. तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. If suppose we have people who visit, so one thing that we do in the school, 1 minute, yeah, one thing that we do in the school is रक्षाबंधन के लिए, जैसे अगर हम लोग जो मिलिट्री के लोग हैं या फॉरेस्ट के लोग हैं उन्हें राखी बनवाते हैं या ट्रीज को राखी बनवाते हैं. This if we do from a very small age, when they start having questions, उनके सवाल आना शुरू हो जाते हैं, and gradually when they start asking things about trees and grass and nature, तो तब हम लोग ये शुरू कर सकते हैं. या फिर if they ask कि ये पंखा कैसे चल रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि किस तरह से बिजली कहाँ से आ रही है, एंड हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन द पावर प्लांट, हाउ मेनी पीपल वर्क ऑन द टेलीफोन पोल्स, हाउ मेनी पीपल डाई बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द टेलीफोन पोल्स. ये सारी चीजें अगर उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आए, तो देन दैट सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड along with that the gratitude increases कि so many people are working together while risking their lives also, just so that I can get to switch on this fan. तो उसके लिए तो हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं. दिस इज ऑल करंट टाइम. अभी का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिनेरियो है, उसके बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ उनसे. So does that clear that, Bhuvneshwari ma'am? Yes, sir. And I have got to know the other perspective also, कि the pride वाला perspective. करंट सिचुएशन पे अगर वो कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है, मैंने वो सोचा नहीं था कि प्राइड फील कर सकते हैं वो लोग. सो इवन दैट इज द पर्सपेक्टिव. ये अक्सर होता है बिकॉज, एंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, क्योंकि अगर पेरेंट्स भी अच्छे रहे, बट देन पेरेंट्स के अगर भाई बहन, मतलब जो बच्चे के अंकल आंटी चाचा काका वगैरह जो रहते हैं, if they are proud people, if they are people who like to show off wealth, so still the child learns to be learns to feed his pride. क्योंकि उनके कजिन्स आते हैं, कजिन्स के पास में सारे इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड शूज, इंपोर्टेड टी शर्ट, सब ऐसे सामान रहता है, एंड दिस चाइल्ड डजंट हैव एनीथिंग बिकॉज इसके पेरेंट्स नहीं खरीदते हैं, दे आर सिंपल पीपल.
तो पेरेंट्स के तरफ भी एक तरह का रिजेंटमेंट तैयार हो जाता है, एंड द siblings also, the child gets jealous of the siblings also, and at the same time उसे ये भी समझ में आता है कि जितना पैसे का बढ़ा हुआ दिखाया उतने मेरे दोस्त बनेंगे. सो ये सारी बातें होती है. तो I don't know where this point had come up, probably in one of our meetings, कि अगर छोटी लकीर को बिना हाथ लगाए, सॉरी, एक लकीर को अगर बिना हाथ लगाए छोटा करना है तो उसके बाजू में एक बड़ी लकीर बना दो तो वो अपने आप छोटी हो जाती है. सो दैट इज व्हाट आवर एफर्ट इज एज टीचर्स, एज स्कूल्स, कि घर में जो वातावरण है या बच्चे के लाइफ में जो दूसरी सब चीजें चल रही है उसके कंपैरिजन में हम लोग अगर इतना सारा और इस तरह से कर सकते हैं काम कि that becomes more valuable to the child, तो then अपने आप जो बाकी सब चीजें हैं वो साइडलाइन हो जाएगी. If we respect simplicity, if we value simplicity, if we don't enforce simplicity, we let the child experience कि देखो आप इस तरह से जी के देखो, आप उस तरह से जी के देखो, आप देखो कैसे किस में ज्यादा खुश रहते हैं. So it's like telling a child that you wear a full suit, tie, shirt, coat, trousers, leather shoes वगैरह सब पहन के आप 5 दिन स्कूल में जाओ और सिंपल कुर्ता पैजामा पहन के 5 दिन जाओ, देखो किस में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. See in which you have more fun, खेलने में किस में ज्यादा आसानी रहती है. See in which you are more कनेक्टेड, क्योंकि ये भी तो होगा ना कि एक बच्चा अगर ऐसे कपड़े पहन के आता है तो बाकी लोग उससे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. दैट आल्सो चेंजेस, दैट आल्सो शिफ्ट्स. सो सी इन विच क्लोथ्स चिल्ड्रन आर मोर फ्री टू टॉक टू यू, योर फ्रेंड्स आर मोर फ्री टू टॉक टू यू. सो जितना हो सके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, करंट एक्सपीरियंस से हम लोग ये टैकल कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल. एनी मोर पॉइंट्स और क्वेश्चंस? ओके. सर अगर हम बच्चों को ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज हाउस लेकर गए तो क्या उससे उनमें ग्रेटिट्यूड की भावना का विकास हो सकता है? उससे एम्पैथी तैयार हो, एम्पैथी स्ट्रांग होगा एंड ग्रेटिट्यूड भी रहेगा. बट देन देयर हैज टू बी द करेक्ट काइंड ऑफ डिस्कशन आफ्टर इट. जैसे ऑर्फनेज अगर रहा तो यस, स्ट्रांग सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रहेगा, बट देन दैट हैज टू बी डिस्कस्ड इन दैट डायरेक्शन. इट बिकॉज एक नजरिया ये भी है ना कि देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु लिव ऑन डोनेशंस. लाइक जो ऑर्फनेजेस वगैरह है वहां पर लोग पैसा डालते हैं, उनको हो सकता है ये भी दिखे. दूसरी तरफ से उनको ये भी दिख सकता है कि देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु नोबडी केयर्स अबाउट. तो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल के पीपल केयर अबाउट मी, but that still doesn't relate to why I should switch off the fan when I go out of the room. तो as I said कि आप किस बात को टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से the experience has to be relatable. Does that address the point? ओके. तो ये सब एक्सपीरियंसेस अगर बच्चे फेस करते रहे तो देन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे दे बिकम हाईली रेजिलियंट.
हाईली रेजिलिएंट मतलब क्या? उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितना भी ट्रेजिक हो जाए, कितना भी चैलेंजिंग कुछ हो, वो डटे रहेंगे. दे वोंट बैक डाउन. They can take that beating, they can take those challenges, they can take those failures. At the same time, they will be self motivated. उनको किसी और के encouragement की जरूरत नहीं पड़ेगी, because they have already received the encouragement that is needed. अगर उनको ऑलरेडी पता है कि समाज के इतने लोगों के काम के वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, it is because of the food that I am eating right now that I can work more. It is because of the capacity of the grass to grow, of the plant to grow, that I have food in the first place. प्लांट्स ही नहीं रहते तो फार्मर्स तो बहुत दूर की बात, फार्मर्स नहीं रहते तो फूड तो बहुत दूर की बात. शुरुआत में ही ये सब चीजें, अगर बेसिक से अगर ये सब चीजें मुझे मिल रही है एंड आई एम एबल टू ग्रो, तो देन इट बिकम्स माय ड्यूटी टू डू समथिंग. मैं पर्पस, मकसद, डेस्टिनी, फेट, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. बट मैं जब तक जिंदा हूँ कुछ ना कुछ करते रहूंगा. कम से कम ये मेरे मन में तो रहता ही है, एंड ये मेरे हालचाल, बोलने में और एवरीथिंग, इट कैरीज इन एवरी एक्शन ऑफ व्हाट आई डू. सो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. एंड ये सब चीजें है तो ऑब्वियसली कहीं पर भी ग्रेटिट्यूड और घमंड, ये दोनों पोलर ऑपोजिट है. अगर घमंड है तो आपके पास में ग्रेटिट्यूड नहीं है, अगर ग्रेटिट्यूड है तो आपके पास में घमंड नहीं रह सकता. सो घमंड नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल बी क्यूरियस टू लर्न मोर थिंग्स. जो भी आपके पास में होता है, आप हरदम उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं. वो आप यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर मैन. So that is the long term effect. Now what activities can you do? तो जो हम लोगों ने अब तक 3-4 चीजें यहाँ वहाँ की डिस्कस की थी, तो वो तो है ही, उतना तो आप कर ही सकते हैं. उसी के साथ साथ में यहाँ पर I have put up a compilation. Hold on, I'll try to access this and I'll try to share the screen. This is the advantage of having online sessions. ये जब पहली बार मैंने किया था तो तब मैंने I had to depend कि मैं presentation दे दूँ and people will access it. But here I can share it and I can show it to you. Yeah, so this is Berkeley का US का document है. This has 52 pages and I think almost 100 activities or something like that. नहीं, ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इसमें फिर भी बहुत सारे एक्टिविटीज है. तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हैं. सोशल अवेयरनेस वगैरह के है. जो हम लोगों ने डेनमार्क एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी. When I share the PDF of the presentation, उसमें when you click this, जो मैंने क्लिक किया, वो खुलेगा अपने आप. ये जो कंपाइलेशन है, वो PDF में आप ये कंपाइलेशन पे क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन. So this is a curriculum from US and ये इस तरह के एक्टिविटीज है उसमें. So discover your grateful self. तो ये किसके लिए? तो this is for 6th to 12th standard and कितना टाइम लगता है? तो उसको एक क्लास लगता है. तो मटेरियल में लेसन 1 पावर पॉइंट शो. तो इसमें भी वही है कि ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो देन वो पावर पॉइंट शो खुलेगा एंड फिर आप वहाँ का पढ़ सकते हैं कि ये क्यों चाहिए आपको. फिर कंप्यूटर एंड मॉनिटर और प्रोजेक्टर. तो कुछ एक्टिविटीज में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इसमें वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड ये पढ़ के वी आर इंडियंस, हम लोग इनहेरेंटली
जुगाड़ के उस्ताद है, तो जहां पर भी आपको ये समझ में आए कि ये उन्होंने प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए यूज किया है कि उनको कुछ फिगर्स, कुछ चीजें बतानी थी, तो वी कैन ऑलवेज हैव आवर ओन व्हाट डू यू से ऑल्टरनेटिव्स। हम लोगों के जुगाड़ हम लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनके ही तरह वो एक्टिविटी लेनी है, बिकॉज a lot of us work in areas where projector ये सब चीजें अरेंज करना ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है. So yeah, so this is one document. I'll just see if this is a very good story, gift of the Magi. तो ये भी एक तरीका है gratitude डेवलप करने का. So stories, movies again can serve as very powerful ways in which you can develop all these qualities. So yeah, I'll share all this. Children Full of Life, again I'll just quickly check if it is already available online. तो मैं आपको लिंक ही भेज दे सकता हूँ, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए. Okay, so I searched for Children Full of Life. I think this is the full version. थोड़ा सा आपको सबटाइटल वगैरह देखना पड़ेगा कि इसमें ज्यादा क्लियर है. Yeah. Okay, so this should work. Let's see if it has the subtitles. It has the subtitles also. Yes, good. ठीक है, तो ये मैं लिंक आपके साथ में शेयर कर देता हूँ. You can use this. I'm putting it in the WhatsApp group. All right, तो ये आप definitely देख सकते हैं. And it's lucky that it is on YouTube. तो कुछ ये नहीं है, copyright का issues वगैरह कुछ नहीं है. All right, so that is one. And the next is जो हम लोग quiz में भी जो मैंने question पूछा था कि whether Montessori was a person, was a technique, or what not. तो Montessori, when she was working, so she was working as an Italian doctor, the first lady doctor in Italy or Europe, one of them. I don't remember whether it was the whole of Europe or just Italy, but she was the first woman doctor. And to the point that when she went for her first interview, तो उसे पूछा गया कि या उसे शायद बोला गया कि we don't need anyone to cook or clean here or something like that, ऐसा कुछ तो भी रिमार्क डाला था. तो when she went out in the society and she, being the first lady doctor, went into child psychology, so obviously look at it this way, a woman growing up and a man growing up see two very different pictures, two very different sides of the same picture. तो obviously अगर पहली लेडी डॉक्टर आई तो उनका देखने का नजरिया बहुत अलग था बाकी लोगों से. So जहाँ पर education was seen as people just growing up and being taught and typical जो school का scenario है वो सब, उस respect में she saw something very different. She studied child psychology. She saw that जो बच्चे हैं they should be growing up naturally because
हर बच्चे का एक कॉलिंग होता है, इंटरनल क्लॉक रहता है कि अभी उसे ये सीखने की जरूरत है, अभी उसको वो सीखने की जरूरत है। तो पहले फिजिकल डेवलप होगा, फिर इमोशनल डेवलप होगा, फिर मेंटल डेवलप होगा, फिर all this, if it is done mindfully and if this is done with a spiritual purpose, तो then spirituality भी develop होगी। तो इन सब के इसमें she wanted to have one key stream कि ये अगर आप इस तरह से अगर सोचे तो ये सारी चीजें अपने आप डेवलप होनी चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा इंटरफियर ना करें तो। And that is what is referred to as the 5 great stories. तो 5 great lessons या 5 great stories अगर आप सर्च करेंगे तो अगेन यूट्यूब पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। फर्स्ट ग्रेट स्टोरी इज रिलेटेड टू भुवनेश्वरी मैम, would you like to share this since you have studied this? Yes, sir. So the first great story is about how the earth originated. And then the second great story is how life came on earth. And the third is about the human, how human populated the earth, what were the different activities that they did. Then fourth is the maths language one, and then the maths one. So in these 5 great stories, we come to know step by step what is our origin, how we have traveled from a single dot to now what we are. And it also focuses a lot of importance of time is given in that. How do I explain that time clock? टाइम पार्ट मतलब So, actually the clock that it has only the whole world was made 24-hour clock. billion years ago, 24-hour wala clock, and हाँ, we okay. have just arrived. I can share that. Wait, I'll put it up. So till then you can continue the explanation. Yes, so the first story is about the how earth got formed, then how the sun got formed, then the moon, then what was the atmosphere on earth. It was not as it is now. It was different, right? There were many poisonous gases at that time on earth, and then there was no life. And then the second story, it gradually tells us how a life came on earth. And it also focuses on the survival part. Those creatures, those species who can survive, who can adapt to a situation, can survive to the future generation. So jaise we had dinosaurs in the earlier areas, in the earlier time, and after some time they vanished from the earth because they were not able to adapt to that situation. So only one species which was one of the species which could adapt to the situation was us. हम उस टाइम से सक्सेसफुली सर्वाइव होते हुए आ रहे हैं अब तक, and we are trying to adapt each and every day. We are trying to make innovations. हम inventions कर रहे हैं ताकि हम survive कर सके हर एक चीज को. So it also focuses on the different species part also, ma'am. So for example, जैसे हमको दिखता है कि एक ही species के मतलब एक ही एनिमल के 2 स्पीशीज होते हैं जो बहुत डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन एक ही रहता है. तो ये कैसे होता है? सो इवन दैट वीडियो कैन बी शेयर्ड, सर. कि सपोज अगर एक एरिया में कुछ बर्ड्स का पॉपुलेशन हो और अब उस एरिया में सपोज ऐसा फूड है जिसको पॉइंटेड पीक से ही खाया जा सकता है,
तो ऑब्वियसली जिन बर्ड्स की पीक पॉइंटेड नहीं होंगी, दे विल डाई, देयर स्पीशीज विल बी एक्सटिंक्ट, और सम ऑफ देम विल डेवलप सच पीक, दे विल सर्वाइव. तो ऐसा होता है कि लिविंग थिंग्स अडेप्ट एंड दे सर्वाइव, और वैसे हम आज तक सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं. So it is a very interesting story, and along the way we get to know कि जो भी था, जो भी हुआ, it happened for a reason. और वो साइकिल को कहीं पे किसी ने how do I explain it? Everything happens for a reason. That's what I'm trying to say. You can take the current example of the COVID situation, how the people who have a good immunity are surviving. Yeah. So ek to there is a balance and counterbalance wala concept. The other concept is about the role, the purpose of everything that is there. So for example, वो story ही ऐसी बोली गई है, the language she has used and all that, and yeah, so the language that she has used, the kind of story it is like this के हर चीज जो आती है वो कुछ और निर्माण करने के लिए आती है, and at the same time it has a way of saying thank you to all the things that have made it. So for example, plants के वजह से अगर ऑक्सीजन वाटर में आया, एंड वो वाटर में ऑक्सीजन आने की वजह से फिशेस आ सकी वाटर में, तो देन now oxygen in high concentrations is poisonous to even us, all living beings. So movement was very necessary in the water. So then उसने इस तरह से बताया है कि the seaweeds, the plants in the water, they gave rise to fishes, and the fishes thanked the grass, the seaweed, and the water plants by moving the water, and then the fish gave rise to something else, which again thanked the fish in some other way. तो वो जो पूरा है वो एज अ ग्रेटिट्यूड का साइकिल बताया है. सो मुझे अगर बाय चांस, हाँ, नाउ एज आई सेड कि जो करंट मॉन्टेसरी का सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि हर जगह पे उन्होंने कॉपीराइट लगा के रखा है, हर जगह पे एवरीथिंग दे हैव मेड इनटू अ बिजनेस. तो आई ट्राई टू शेयर सम लिंक्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बहुत कमर्शियल लोग हैं वो लोग. देयर थिंग्स आर नॉट दैट इजीली अवेलेबल. Some people have tried to keep put things online, like there was one school जिसके videos बहुत सारे थे online. Let me check again. ये है शायद, आई थिंक दिस वन. हाँ, ये जो मेहर मॉन्टेसरी स्कूल है ना, इनके काफी कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉन्टेसरी क्लासरूम वर्क करता है. अगेन मॉन्टेसरी का ऐसा है कि शी रियलाइज्ड एट दैट टाइम, सिंस शी वाज द फर्स्ट लेडी डॉक्टर, तो ऑब्वियसली उनके इसमें उनके सोच में और बाकी लोगों के सोच में बहुत फर्क था. तो शी वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज एट दैट टाइम कि मिक्स्ड एज ग्रुप रहना चाहिए, एंड जो लर्निंग आपका सेंटर है या हम लोग जो स्कूल्स है
schools चला रहे हैं, वो schools they shouldn't be just schools, they should be like what was the word that she used, school houses या ऐसा कुछ तो भी था उनका. So the whole point was के क्लासरूम भी या लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उनका वो भी घर जैसा ही रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम होम, इट शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द होम. वहां पर उनके एक्ट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही रहने चाहिए जो घर पर अडल्ट्स के हैं. खाना पकाना, प्लेट धोना, चीजें साफ रखना, चीजें ऑर्डर में रखना, जगह पर रखना, ये सारे रोल्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके रहने चाहिए वहां पर. एंड देयर लर्निंग, देयर स्कूलिंग विल हैव टू हैपन विथ दिस. ये सबके साथ में वो लोग पढ़ाई करेंगे. सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ द मॉन्टेसरी स्कूल हाउसेस. एंड ऑब्वियसली जैसा हम लोग के फैमिली में टिपिकली रहता है, हर कोई तो एक एज का नहीं रहता है. Everybody is of different ages. So the same way, it is very necessary कि जो वहाँ का crowd है या वहाँ के जो crowd नहीं exactly, but then the people of the Montessori school house should be of different ages. तो ये जो concept है first standard, second standard, वो वैसा नहीं रहेगा. Okay, so now coming to the point that we had. Yeah, so this is the clock that Bhuvneshwari ma'am was talking about. 4.6 billion years की जो हिस्ट्री है वो अगर हम लोग एक घंटे में कंप्रेस करने की कोशिश करें कि शुरुआत 12 बजे से हुई थी, अर्थ का क्रस्ट फॉर्म हुआ, फिर बाकी की और चीजें, कि शायद करीबन 9:18 पे लाइफ के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो तैयार हो चुकी थी. एंड फिर बाद में प्रिजर्व्ड रॉक्स मतलब कुछ ऐसे रॉक्स जिस पर कुछ ना कुछ साइन है लाइफ का, वो 10:27 मिनट्स पुराने हैं, 27 मिनट पुराने हैं. मतलब अगर आप कार्बन डेटिंग वगैरह वो सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पत्थर है जिसमें कुछ लाइफ के साइंस है वो उतने पुराने हैं. देन फर्स्ट फॉसिल्स, कि ये तो ठीक है कि इसमें डीएनए वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ ट्रेस होगा, बट फर्स्ट फॉसिल्स जो है उसको अगर डेट करें तो वो यहाँ कहीं आएंगे, 13 मिनट 4 सेकंड. फर्स्ट बैक्टीरिया 17 मिनट 37 सेकंड्स. फर्स्ट सेल्स विथ न्यूक्लियस जिसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, दैट इज 40 मिनट्स 26 सेकंड्स. तो फर्स्ट बैक्टीरिया से लेके फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल तक इतना समय गया. देन फर्स्ट जैसे ही पहला न्यूक्लियस वाला सेल आया तो फर्स्ट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म 41 मिनट्स 45 सेकंड्स. मतलब 40 मिनट्स 26 सेकंड्स के बीच में, और सॉरी 40 मिनट्स 26 सेकंड से लेके 41 मिनट्स 45 सेकंड्स तक, इतने से गैप में हम लोग यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर बन गए. मल्टीसेल्यूलर से पहली जेलीफिश, फिर पेलियोजोइक एरा, फिर फर्स्ट फिश, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, फर्स्ट इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, इन सब के बीच में आप गैप देखिए कितनी कम है. एंड देन लुक एट फर्स्ट मैमल से लेके यू लुक एट फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर. ठीक है, सो दिस इज 57 मिनट्स 7 सेकेंड्स एंड वहां से लेके 59 मिनट्स 58 सेकेंड्स, करीबन 3 मिनट का फर्क है. ओके, और 3 मिनट के बाद में फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर से लेके फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस तक, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड.
1 सेकंड, और 1 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स से लेके अभी हम लोग जहाँ हैं, वो 1 सेकंड के अंदर अंदर वी हैव डिस्ट्रॉयड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस प्लेनेट. यस भुवनेश्वरी मैम. No, I was just about to say that the same line. कि बस 1 सेकंड में, although we have 1 सेकंड में हमने हमारा ओरिजिन तो जान लिया, we went to the first hour, to the first minute, but along the way we have caused a lot of destruction on earth. Gratitude तो छोड़ो, लेकिन ये we went the other way. So ये सारी चीजें होती है जिसके थ्रू बच्चे समझ सकते हैं या बच्चों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट वी शुड बी डूइंग. सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल कि कौन से एरा में क्या हुआ था. तो जैसे आर्कियन एरा में ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं है हम लोग को, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ यही एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, यही सब थे. एंड धीरे सॉरी नॉट इवन फंगस भी आई थिंक केम समवेयर इन प्रोटेरोजोइक एरा. एंड फिर बाद में ये सब जो शेल्स एंड स्नेल्स एंड नॉट इवन स्नेल्स, जो इसको क्या बोलते हैं, क्रैब टाइप एनिमल्स, ये सारे क्रस्टेशियंस, ये सब यहाँ तैयार होना शुरू हुए. फिर एक जाइजेंटिक एक्सटिंक्शन यहाँ हुआ, दैट वाज बिटवीन पर्मियन एंड ट्रायसिक एरा. तो तब क्या थे वो आप एनिमल्स देख सकते हैं यहाँ पर. फिर बाद में सेकंड बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर्स के जाने से, या डायनासोर्स वे द विक्टिम ऑफ दिस एक्सटिंक्शन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. फिर वहां से पेलियोसिन एरा शुरू हुआ, एंड उसमें सारे मैमल्स, मैमथ वगैरह ये सब चीजें तैयार हुए. एंड देन यू कैन सी कि कहाँ तक क्या हुआ है करके. So yeah, there are many different ways how we can explain certain concepts to them. Which is why although we don't have one single book for this, but थोड़ा सा इधर उधर से ढूंढ के हम लोग ये सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं उनको ये सारी बातें समझाने के लिए. अब ये अगर हम लोग करते हैं तो अगेन जो एक एनईपी का एक हिस्सा था अबाउट इंटीग्रेटिंग कंसेप्ट्स, इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेटिंग स्ट्रीम्स, तो उसमें उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, ऑल ऑफ दिस टुगेदर. ये सारी चीजें अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप सीखते हैं बच्चे, because they'll have to learn to divide 4.6 billion by 24. Yeah, they'll have to learn to divide it by seconds. So 24 into 60 into 60. ये जो है ये इतना पूरा उनको डिवाइड करते आना चाहिए. So yeah, all right. So that touches the gratitude wala point. We need to focus on gratitude in schools. Next is the mindfulness. अब mindfulness क्या होता है? तो हाँ, okay, one more point. तो इसमें जैसा हम लोगों ने पिछली बार देखा था, एम्पैथी में मेन केमिकल इन योर ब्रेन इज ऑक्सीटोसिन. In case of gratitude, it is all this: सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन. क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एक बार आपको पता है कि आपके रूट्स इतने गहरे हैं, आप आज जहां हो वो इतने सारे चीजों के वजह से हो, तो अपने आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है. तो यू हैव अ मिशन, सो टू स्पीक, कि मुझे कम से कम इतनी सारी चीजें करनी है, मुझे कम से कम ये सब करना है मेरे लाइफ में बिफोर आई डाई.
then you have serotonin, because आपको एक तरह से गर्व भी महसूस होता है कि you are a product of 4.6 billion years of evolution. तो आपको इस बात का गर्व रहता है कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ आए हैं, और हम लोगों में क्या करने की क्षमता है. That is the pride, the positive pride, जिसे हम लोग गर्व बोलते हैं. And then you have oxytocin. अब obviously if you realize that all of us are a product of these many years of evolution, so the least that you can do is have love for each other. हम एक दूसरे के साथ में अगर ठीक से रहे तो ये कम से कम चीज है. मतलब दिस इज द मिनिमम दैट वी कैन डू. इतना तो हमको करते ही आना चाहिए कि एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते आना चाहिए. So that is the love family, oxytocin. Now we have another part of the brain which we did not really study because वो थोड़ा सा complicated है. We will discuss about it because it is also very important. Mindfulness. Now mindfulness is not just meditation, it is a group of activities. Meditation is one of them. Now example is doing self-awareness exercises. So self-awareness के लिए भी I'll share something. Let me check. I should have it on my desktop. Yeah, I have it on my desktop. All right, so this is a work in progress. मैं अभी भी बना रहा हूँ and I've not been getting too much of time to complete it. And it's actually a continuous process. तो complete कभी होगा भी नहीं है. But I'll still try to apply it in more fields. तो एक हम लोगों को, like if you think about an evaluation strategy where we are not concerned with marks, we are not concerned with numbers, but we are concerned with evaluation कि भाई कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा. There must be some kind of growth in the child that is that we can understand, we can try to understand. So I found a list of what we can refer to as qualitative evaluation questions. Qualitative evaluation मतलब क्या? आप अब अगर मार्क नहीं दे पाते हैं तो कम से कम कुछ शब्द तो वापर सकते हैं. सो सेल्फ अवेयरनेस अगर हम लोग को देखना है और सेल्फ अवेयरनेस अगर हम लोग को जज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज सेल्फ अवेयरनेस लुक लाइक. तो बच्चे या हम भी राइट नाउ अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज योरसेल्फ. बच्चों के ऊपर हम लोग, बच्चों के साथ में हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे. सो अगर हम लोग अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रिकॉग्नाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज वन वे ऑफ नोइंग दैट यू हैव सेल्फ अवेयरनेस. अगर हम लोग समझते हैं कि कोई चीज सही है, कोई चीज गलत है, और वी आर वोकल अबाउट इट, हम लोग बोल देते हैं. कहीं पर भी हम लोग ये 10 जगह से ऐसे सोचते नहीं है कि अरे ये बोलेंगे तो क्या होगा, वो बोलेंगे तो क्या होगा. नहीं, वी आर अपफ्रंट अबाउट इट. सो दैट इज हैविंग अ हाई सेल्फ एस्टीम. तो अगर हम लोग ये करते हैं देन दैट इज अनदर साइन दैट वी आर सेल्फ अवेयर. अगर हम लोग ये समझते हैं कि मैं अपने आप को जिस तरह से देखता हूँ और समझता हूँ, हो सकता है कि कोई और मुझे उस तरह से नहीं देख पाता या नहीं समझ सकता. अगर हम ये बात समझते हैं तो then that is again another trait of self awareness. And then the last is an example कि जो हम लोग
ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहे थे या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहे थे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ऑपोजिट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. For example, if there is a child who has a problem with instant gratification, आप अगर उन्हें कहोगे कि I'll give you 1 chocolate today या फिर I'll give you 5 chocolates tomorrow, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला आज की 1 चॉकलेट ले लेगा, उसे कल के 5 की ज्यादा ये नहीं है, मतलब he cannot wait that long. डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला कल तक राह देखेगा, एंड उसके मन में ऐसा रहेगा, ठीक है ना, आज 1 ही चॉकलेट मिल रही है, अगर आज मैंने नहीं ली तो ज्यादा से ज्यादा मेरा 1 चॉकलेट का लॉस होगा, बट आज मैंने नहीं ली, 1 चॉकलेट का लॉस होगा, और कल भी नहीं मिला तो बस 1 ही चॉकलेट का लॉस होगा. बट इफ आई टेक वन टुडे, तो मेरा 5 चॉकलेट का लॉस तो पक्का है. दिस इज 100%. So they'll understand this fact and they'll choose के आज रुक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही चॉकलेट का लॉस होगा, कल देख लेंगे. This is an example of delayed gratification. In our case, okay, in our case, how does this come up? If if we decide कि मुझे पैसे चाहिए, तो आज अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अभी के अभी कुछ पैसे कमाने का जरिया ले लेता हूँ, एजुकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आई स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम नाउ एटलीस्ट, एंड देन वी डिसाइड कि देन वी कम टू नो कि अगर मैं कुछ और क्वालिफिकेशन वगैरह कर लेता था तो मैं जॉब कर सकता था, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम सीख ले सकता था कुछ ना कुछ, और उसके वजह से आई कुड हैव अप्लाइड दैट इन सम अदर फील्ड एंड अर्नड मोर फ्रॉम देयर. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन. सोशल मीडिया, अगर हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, एंड एक बार स्क्रॉल करना चालू करते हैं, फिर स्क्रॉल करते ही रहते हैं, हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि अभी के जो मैं 20 मिनट वेस्ट करूंगा, आधा घंटा वेस्ट करूंगा, वो मैं कहीं और डाल सकता हूँ. अभी का जो मैं 1 घंटा वेस्ट करूंगा, उतने में मैं कुछ बुक रीड कर सकता हूँ, आधी मूवी देख सकता हूँ, समथिंग एल्स. सो वी आर ओके विथ being on WhatsApp for 1 hour, half an hour, 2 hours, ऐसे, and it is only after it is gone then we realize कि अरे मैंने नहीं करना चाहिए था, मैं कितना कुछ कर सकता था इतने समय में. Yes, it is directly related to self-control, and self-control again is directly related to something called executive control. Okay, तो ये क्लियर हुआ what is delayed gratification. Any questions so far? ओके, अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे. So one thing typical of mindfulness activities is something called introspection. Spec, देखना, इंट्रो मतलब इनवर्ड्स, अंदर झांक के देखना,
that is introspection. We'll be doing this tomorrow. हम लोग कल कुछ ऐसा करेंगे जिसमें introspection होगा, and yeah, we'll experience it tomorrow. शॉर्ट टर्म में क्या होगा? तो अगेन ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, दीज लिंक्स आर रिलेटेड टू साइंटिफिक पेपर्स या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल प्रूफ्स है ये सब चीजों के, स्टैटिस्टिकल प्रूफ्स है, साइंटिफिक प्रूफ्स है. तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज अगर हम लोग करते हैं तो शॉर्ट टर्म पे ये होता है कि अटेंशन बढ़ता है. यू कैन इंक्रीज योर टाइम एंड लेवल ऑफ अटेंशन दोनों. देन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ता है. एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मतलब सेल्फ अवेयरनेस के जो हम लोगों ने इतने सारे एक्सरसाइजेस देखे, तो उसमें कुछ कुछ ये भी होता है कि एम आई अवेयर ऑफ व्हाट इमोशंस आर गोइंग थ्रू मी राइट नाउ. अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या मैं अवेयर हूँ. वी डू दिस इन सम ऑफ द वर्कशॉप्स. जो भी हो रहा है, जो भी सेशन चल रहा है, वी स्टॉप इट, and for 2 minutes very quickly we go through a round and everyone has to just say what they are feeling right now. So do you all want to do it right now? एक बार करके देखना है. Very quickly, सिर्फ एक एक करके. Let's say मीना मैम का भी कैमरा शुरू है, तो मीना मैम you can go first. What are you feeling right now? बस उतना शेयर करके आपको नेक्स्ट नाम बोलना है बस. एक शब्द या एक सेंटेंस में. यू आर ऑन म्यूट. Yeah, I'm feeling relaxed. Okay, next. Now it's Punishri ma'am. I am thinking. A lot of thinking is going on. Okay, so the word for that is pensive. Devama. What is the word? Pensive. Pensive. Okay, pensive. So I am trying to absorb a lot and I'm thinking about it. Yes, Devama. I am worrying and planning because today I have lots of things to do. I have my exams and sessions also, so planning and thinking. So the word for that is preoccupied. I'll start writing these words in the chat. You can continue. Next name, Divya ma'am. Bharat sir. I am curious about the next sessions, and I am curious to know about this. Curious. Okay. Meditation on mindfulness. Next is Nilesh sir. Nilesh sir. I think Nilesh sir is not here. What happened? Okay, Deepali ma'am. Next is Ira. Deepala ma'am, you are not very clear. Sir, मेरी आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है. Hello. Okay. I am in thinking process now. And next is Indira.
Indira ma'am, are you there? Can you hear me? Yes, we can hear you, Indira ma'am. No, she is on mute. Okay, then Resha ma'am. Yes, ma'am. Sir, I am feeling very new to all these things. Like I have heard it for the first time. All these concepts and all Feeling, this feeling. What are you evolution. feeling? Feeling new actually. That is like thought. Feeling क्या है? Okay. Feeling is like I'm feeling very hot now. I'm sitting in my room. So I don't know, sir, what. That is senses. हम लोगों को Okay. दोनों के बीच का चाहिए. Feeling, okay. Thoughtful. I'm feeling thoughtful. Okay, pensive. Again, the word is pensive. Pensive, okay. Yes, Deepali ma'am. समटाइम्स ये बच्चों के साथ में भी होता है सर. मैंने ट्राई किया है ऐसे कि बच्चे फीलिंग जो है ना वर्ड्स में नहीं बता पाते हैं. तो शायद हमारा भी ऐसे हो रहा है कि एकदम से आपने पूछा तो फीलिंग्स क्या हो रही है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को वो वर्ड जो है वो गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. Yes, that is फीलिंग्स the भी point. बताना आना चाहिए बच्चों को. यस, इसीलिए ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है एंड माइंडफुलनेस के लिए. ओके, थैंक यू सर. रेशा मैम, हु इज नेक्स्ट? Yes, next is Meghna ma'am. I am happy that today I came to know so many new things to learn. So next is Anil Tiwari sir. Thank you, ma'am. I am ready to abduct more knowledge about this. अनिल सर, वापस वो that is thought process. Feeling, emotion क्या महसूस हो रहा है आपको अभी? I feel very happy right now. Okay, happy. Next name. Next one, Jyoti madam. Yes, thank you. I am thinking now. Mindful means ATP एक्टिविटीज रहती है वो, मतलब मैं सोच रही हूँ. Pensive. Now who is left? I am left. Yes, I am worried and confused. Is it clear, So, sir? Yeah, so that is anxious. अच्छा लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं और कहा इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में सोच भी रहे. So that is curious and there is a word called peachy, but I don't know accurately. Okay, next name. कोई बचा है क्या अभी? Yes, Yes, sir, I am left. Pooja ma'am. Okay. So we'll go with Pooja ma'am, then yeah. Pooja ma'am, are you there? Am I audible, sir? Yeah.
Actually, I got disconnected. I feel more attentive from last 2 days. More attentive. Yes. Okay. Since I cannot find the correct Actually, emotion for that, but grounded is a better word. actually, I'm suffering from fever now, so I'm not that much attentive from last 2 days, and today I'm feeling that I'm more attentive from last 2-3 days. Okay. Yes. Okay. Who was the Next other person? name, Shilpa ma'am. Yes, I am left. Shilpa ma'am. Yeah, thank you. Actually, I'm thinking about कि मेरा जो 1 week का ट्रेनिंग रह गया है, मैं वो चीज कवर कैसे करूंगी? Okay. So again, worried, anxious. Yes, yes. Sir, one more feeling I am feeling. Should I share? Jaldi. Yes, sir. Sir, I am also feeling thankful to you because you are enlightening us with such a lot of knowledge and on various topics and various aspects, which we can, which we couldn't learn anywhere else, I think. So yes, I am very thankful to you. Thank you for enlightening us. Okay. All right, Jay Prakash sir. Sir, I'm feeling happy and attentive, sir. I'm feeling happy and attentive. Okay. Anyone else left? कोई बचा है? ओके, तो इस तरह से अगर आप इफ दिस कंटिन्यूस, मतलब आप ऐसे रेगुलरली करते रहेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर चिल्ड्रन विल बी अलर्ट, सेकेंडली दे विल बी मोर सेल्फ अवेयर, एंड ये जो समय अभी हम लोगों को लगा पर पर्सन, ये कम होते जाएगा. So it will actually start becoming more rapid. And the best part is they will be in absolute awareness of their feelings. अगर झगड़ा होने वाला है, वो होने के पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि उनको immediately समझ में आएगा कि अरे I am angry right now. I cannot be angry right now. Okay? तो वो awareness उनके साथ में continuous रहेगी. And that is what leads to executive control. Executive control मतलब वो होता है कि जो in case of children, जो हम लोग देखते हैं कि वो लोग गुस्सा होते हैं तो एकदम नीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, या फिर अगर कुछ भी हाथ में रहा तो वो फेंक देंगे. All this is loss of executive control. Yes, दीपाली मैम. जैसे मोहना मैम आपने कहा था सर की मोहना मैम भी हमसे बात करने वाले हैं, वो भी जो सेशन लेते हैं या फिर हम भी बच्चों से जब बात करते हैं गुड टच बैड टच के बारे में, तो बहुत बार बच्चे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं, इस कारण वो ज्यादा अब्यूज किए जाते हैं या फिर और ज्यादा उनको तकलीफें होती है. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर दैट फीलिंग ऑल्सो, कि शब्दों में बयां कर पाए अपना दुख है, सुख है, जो भी है वो प्रॉपर शब्दों में किसी के साथ बयां कर पाए. यस, यू आर वेरी राइट. काफी बार ऐसा होता है कुछ ना कुछ बच्चों के साथ में जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो सो या शॉर्ट टर्म इसमें आपको ये सब इफेक्ट दिखेंगे. एंड बेटर लर्निंग, कॉग्निशन, ऑब्वियसली अगर वो अपने इमोशंस से अगर ट्यून में है तो they will be able to channelize their learning. उनको समझ में आएगा कि मैं अभी agitated हूँ इसलिए मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, या फिर I am sad that is why I am distracted. तो वो थोड़ा सा समय निकाल के उसे सेटल करेंगे पहले. They will give themselves time and space to readjust, centering जैसा हम लोग बोलते हैं, and then फिर वो वापस शुरुआत करेंगे, and then the learning will be better. Cognition will be better. कि लर्निंग तो ठीक है, बट देन बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इट,
दैट विल ऑल्सो बी बेटर। फिर लॉन्ग टर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म मतलब ऑब्जेक्टिविटी। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई न्यूज पीस पढ़ते हैं और इमीडिएटली हम लोग वी लूज इट, कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हम लोग पढ़ते हैं कि 4 हिंदुओं ने एक मुस्लिम का रेप कर दिया, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 4 मुसलमानों ने एक का गला काट डाला, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 4 दलितों ने पत्थर फेंक के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, या फिर 3 ब्राह्मण ने गाय को वो गौरक्षण के इसमें किसी दलित को मार डाला। तो वी इमीडिएटली लूज इट। हम लोग यही करते हैं कि अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ में कल हो गया तो। सो ऑल दिस इज लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हम लोग किसी बात को क्योंकि किसी और ने किसी एक तरीके से वो कहानी हम लोगों को प्रस्तुत की है, तो हम लोग उसे उसी तरह से देखते हैं और उसके वजह से हम लोग के मन में वही प्रभाव पड़ता है। वी रिफ्यूज टू लुक एट इट एनी अदर वे। हम लोग उसे ऑब्जेक्टिवली देख ही नहीं पाते, हम लोग बस वो एक ही तरह से देख पाते हैं जो हम लोगों की छोटी सोच है। सो उसके वजह से फिर एक हत्या के वजह से पूरा ये शुरू हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट एंड राइट्स, ऑल दीज थिंग्स, दंगे शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से। देन यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, ऑब्जेक्टिव का और एक एग्जांपल, ये तो हम लोगों ने अभी कुछ रेसिज्म, कास्टिज्म वगैरह के बारे में बात की। पहले यू ऑल्सो हैड दिस अबाउट साइंस। गैलीलियो गया बोलने के लिए कि सन इज ऑन द सेंटर एंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड इट, लगा दिया उसको फांसी पे। सो हर एरा में दिस इज अबाउट समथिंग एल्स। तो इफ यू आर ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, you would think कि ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, why is this person saying like this, let's find out. That is objectivity. Critical thinking, अगर किसी ने ये न्यूज पीस छापी है कि ये कास्ट के इंसान ने ये कास्ट के इंसान के साथ में ऐसा कांड किया है, तो then our critical thinking tells us कि the paper is doing this because they want to sell. उसमें मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, ठीक है, होगा उसमें से 2 कास्ट में से एक कास्ट वाला कोई मेरे कास्ट का होगा, बट देन दैट पर्सन इज डिफरेंट। उसने जो बड़े होते समय जो देखा है वो अलग है। हैव आई सीन द सेम थिंग अराउंड मी? हैव आई ग्रोन अप द सेम वे? तो मेरे तो वैल्यू सिस्टम अलग रहने चाहिए ना। व्हाई एम आई गेटिंग अफेक्टेड बाय समथिंग दैट इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर by someone who is profiting out of selling that paper? So ये critical thinking होती है, हर चीज को एनालाइज करना कि जो बोला गया है उसका बेसिस क्या है, वो क्यों बोला गया है, एंड जो उसका सपोर्ट है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से कि एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द अर्थ नेचुरली इज गुड फॉर हेल्थ. This is my statement. Now I have to support it with some evidence. Why? So then I can say कि we are human beings and हम लोग की जो body है वो natural body है. तो normally जो natural चीजें हैं वो हम लोग के साथ में अच्छे से compatible है, because source दोनों का same है. It is carbon, hydrogen, oxygen mixed together in complex forms. ऐसे मतलब आई हैव टू सपोर्ट इट, आई हैव टू जस्टिफाई इट. बट मेरा जस्टिफिकेशन अगर ऐसा है क्योंकि नेचुरल चीजें नेचुरल चीजों के साथ में अच्छे से काम करती है, दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन. इट नीड्स सम बेसिस, इट नीड्स सम साइंटिफिक एविडेंस. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज दिस कि किसी ने कुछ क्लेम किया है तो वो क्लेम करने का जस्टिफिकेशन क्या है, एंड वो जस्टिफिकेशन सुनने के बाद में एम आई रेडी टू एक्सेप्ट दैट जस्टिफिकेशन एज द करेक्ट रीजन फॉर दैट क्लेम. अगर मैं बोलता हूँ कि जो गरीब लोग होते हैं वही हरदम क्राइम करते हैं,
What is my justification for that? What is my basis for that? मैंने अगर ये जस्टिफिकेशन देखा कि आप स्टैटिस्टिक्स देख लो, ये फेसबुक के पोस्ट में इतना रेशियो बताया था, वो व्हाट्सएप के मैसेज में इतने परसेंटेज बताया था, will you be ready for that justification? Will you accept that justification? No, sir. Because it has not been scientifically studied. अगर वो दुनिया के हर डिस्ट्रिक्ट में किसी ने स्टैटिस्टिक्स अगर लिए रहते हैं और वो कंपेयर किए रहते हैं कि देखो यूपी में इतना हो रहा है, महाराष्ट्र में इतना हो रहा है, कर्नाटका में इतना हो रहा है, बाकी चीजें भी स्टडी करेंगे कि लिटरेसी कौन से स्टेट में कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हर स्टेट में कितनी है, ये सब मल्टीपल स्टडीज करेंगे तब जाके हम लोग को एक साइंटिफिक उसका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, एक नजरिया दिखेगा. इट इज स्टिल नॉट द फैक्ट बट देन इट रिलेट्स टू द फैक्ट. फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, जो स्टडी है उसको कुछ बेसिस है, उसको कुछ तो है, मतलब इट हैज सम साइंटिफिक बेसिस. सो क्रिटिकल थिंकिंग वर्क्स लाइक दैट. तो ऑब्वियसली हम लोग अगर ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहे रेगुलरली, तो देन इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता हूँ तो देन आई कैन also find the solution for an answer, for a problem. If I can figure out the problem, I can solve the problem. It's as simple as that. Then creativity and innovation. Objectivity रहने के कारण, when I figure out कि something is not working well, something is not working right, तो उसका एक innovation निकालना, उसका एक solution निकालना जो समाज ने कभी देखा ना हो, that requires objectivity, that requires creativity. Creativity also works with how the brain cells are connected. हम लोगों ने brain cells के बारे में काफी चर्चा की है इसके पहले. तो आप जब समय देते हैं अपने ब्रेन को फ्लश होने के लिए, अपने ब्रेन को क्लियर होने के लिए, तो देन क्रिएटिविटी के लिए एक चैनल मिल जाता है. एक इमेजिन इफ यू हैव अ रिवर एंड वो रिवर में जगह जगह पर छोटे पूल्स है. तो मतलब एक रिवर है, पूल है, फिर रिवर है, पूल है, फिर रिवर है. हम लोग जो ये सुनते हैं ना सेमाडो, तो डो जो वर्ड है, चिकलदरा का जो सेमाडो है, डो जो वर्ड है वो उस पूल को बोलते हैं जो हर रिवर के नीचे एक फॉर्म होता है बिफोर इट बिकम्स अनदर पार्ट ऑफ द रिवर. सो इमेजिन कि वो पूल में किसी वजह से थोड़ा सा ओपनिंग के पास में अगर कचरा फंस गया है तो एक पूल गंदा होता है, फिर वो गंदा पानी दूसरे पूल में थोड़ा सा डालता है, फिर वो पूल गंदा होता है. धीरे धीरे वो पूल गंदे होते होते आखिरी तक के जो पानी पहुंचता है वो बिल्कुल पीने के लायक नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसका. नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू अनब्लॉक द फर्स्ट पूल. जहां पर कचरा फंसा है वो थोड़ा सा आपने सिर्फ खींच लिया, तो साफ पानी तो ऑलरेडी आ ही रहा है ना, वो हर स्टेज में धीरे धीरे गंदा होते होते जा रहा है. सो देन इफ यू रिमूव द फर्स्ट ब्लॉकेज, तो वो उसके फोर्स से बाकी के भी ब्लॉकेजेस क्लियर कर लेता है. सो दैट इज हाउ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस वर्क. वो एक जगह पे आपने ब्लॉकेज निकाल लिया, थोड़े समय के लिए अगर आपने शांतता रख ली और फिर बाद में वापस एक्टिविटी शुरू की, तो देन ऑटोमेटिकली वो बाकी की चीजें साफ कर देता है. इट क्लियर्स एवरीथिंग ऑन इट्स वे. सो अगर वो इतना क्लियर चैनल खुल गया एकदम से, तो ऑब्वियसली आपका क्रिएटिविटी भी उससे जागरूक होगा. सो ऑल दीज थिंग्स अगेन 21st सेंचुरी स्किल्स, ये तीन चीजों में, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी और माइंडफुलनेस में कवर हो जाते हैं. देन व्हाट एक्टिविटीज कैन यू डू. तो कुछ एक्टिविटीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. कुछ है ड्रम सर्कल्स. ड्रम सर्कल्स का कंसेप्ट हम लोग शायद आगे कभी डिस्कस करेंगे. इट्स एन अफ्रीकन कंसेप्ट. तो अफ्रीकन कंसेप्ट में ऐसा होता है कि एक जेम्बे करके ड्रम होता है. आई कैन एक्चुअली शो यू वन. So this is a djembe.
ऐसे ये तो छोटा वाला है, उसका जो डायमीटर है दिस इज अराउंड 8 इंचेस। ऐसे यू हैव वंस दैट आर 30 इंचेस वगैरह, ऐसे बड़े वाले भी होते हैं। सो वो ये ड्रम्स प्लस उनके कुछ और ड्रम्स प्लस कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे वो लोग सर्कल में गैदर करके बजाते हैं एंड इट्स अ ट्राइबल सर्कल। तो उनका ऐसा मानना है कि इफ वी लेट आवर इमोशंस इन द सर्कल दे बैलेंस आउट, कि मुझ में अगर बहुत नेगेटिविटी है, आज कोई और गुस्सा है, कोई और खुश है, कोई ना खुश है, कोई दुखी है, कोई और ज्यादा खुश है, तो ऐसे सब लोग मिलके जब ड्रम्स बजाते हैं तो सर्कल में ये सारी चीजें बैलेंस आउट हो जाती है एंड सर्कल के बाद में सब लोग लेवल पे होते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रम सर्कल। देन यू हैव आर्ट। आर्ट हम लोग करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें पेपर पे उतरती है, कैनवस पे उतरती है, क्ले पे, वॉट एवर यू आर मेकिंग। देन बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग में आप जब जंगल में जाते हैं बाइनोक्यूलर लेके, तो आपको अगर बर्ड्स देखने रहता है तो देयर हियरिंग इज वेरी शार्प, देयर आईसाइट इज वेरी शार्प, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आपको बहुत शांतता से हर एक आवाज सुनना है। यू शुड बी एबल टू हियर द बर्ड बिफोर द बर्ड हियर्स यू। तो उसके लिए जो माइंडफुलनेस डेवलप होता है बच्चों में, और बच्चों में उतनी क्यूरियोसिटी भी रहती है कि ये बर्ड दिखता कैसे, मुझे देखना है, तो वो क्यूरियोसिटी के लिए वो शांत बैठेंगे। दे विल बी केयरफुल फॉर दैट, दे विल बी अटेंटिव फॉर दैट। तो बर्ड वॉचिंग पे लेके जा सकते हैं आप, बाइनोक्यूलर्स ले सकते हैं। देन यू हैव म्यूजिक, प्लेइंग म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सारी चीजें। तो एक जैसे ड्रम सर्कल का एग्जांपल दिया, उसी तरह से यू हैव अदर वेज ऑल्सो। तबला सीख सकते हैं, पियानो सीख सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। देन क्वाइट टाइम जो हम लोग कर रहे हैं, विपस्सना जो बुद्ध की टेक्निक थी, तो ये कुछ टेक्निक्स है। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड एम्पैथी, वी हैव कवर्ड माइंडफुलनेस एंड वी हैव कवर्ड ग्रैटिट्यूड। माइंडफुलनेस का जो पार्ट है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? फ्रंटल कॉर्टेक्स इज directly related to all the modern नहीं, all the yeah, you can say modern man के जो specialities है, special गुण है, वो कंट्रोल करता है। So for example, taking 1 second to make a decision even though you are angry। मुझे अगर किसी बात का गुस्सा है, मगर फिर भी मैं 1 सेकंड अपने आप को पीछे ले सकता हूँ एंड डिसाइड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। तो ये जो पावर है, दिस इज देयर इन मैन, इंसान में होता है, बाकी एनिमल्स में नहीं होता है, डॉग्स में, मंकीज में, उनमें नहीं रहता है ये, बट इंसानों में ये कंट्रोल रहता है। अगर आपके टीवी पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, कलरफुल एडवर्टाइजमेंट किसी चीज के जा रहे हैं, मगर हम लोग उसे नजरअंदाज करके अगर डिसाइड करते हैं कि नहीं ठीक है, ये जितना भी अट्रैक्टिव होगा, जितना भी कलरफुल होगा, बट व्हाट इज राइट फॉर मी इज दिस, ये जो डिसीजन है, दिस पावर, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स इज दिस, कि ये जो है दिस इज रिलेटेड टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वायर नेटवर्क जो बनते हैं ब्रेन में, उससे रिलेटेड है। बाकी दो जो थे, एम्पैथी और ग्रेटिट्यूड, वो केमिकल रिलेटेड है। इसमें ऐसा है कि अगर आप एक बार डिसाइड करते हैं अपने इमोशंस की सुन लेने की और करेक्ट डिसीजन को नजरअंदाज करने की, तो अगली बार सही डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टाइम और मुश्किल हो जाता है। बाय द एंड ऑफ इट, इट बिकम्स एन एडिक्शन। वही बात को अगर पहली बार हम लोग एक सेंसिबल ये कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो अगली बार सेंसिबल डिसीजन, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल, ये एक्सरसाइज करना और आसान हो जाता है, अगली बार सही डिसीजन और आसान हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। द मोर राइट चॉइसेस वी टेक, द बेटर दिस एरिया डेवलप्स। The more wrong choices we make, the more chances of us getting addicted and not coming out of that cycle. But again,
जो एक बार डिफिकल्ट हो गया था, वापस आप अगर सही डिसीजन लेते तो वापस सही डिसीजन आसान हो जाते. So this is how the frontal cortex works. Okay, so we have completed these three. We'll do what is next the next time. आगे का जल्दी खत्म हो जाएगा, so we'll finish this tomorrow and then we'll move on. All right, we'll take a minute of silence. Before that, any questions, any points of discussion, anything to share? किसी को कुछ कहना है, पूछना है? All right, ठीक है. So we'll take a moment of silence and then we'll break. Sit comfortably. Gently close your eyes. Thank you. Okay, see you all tomorrow. Bye, sir. Bye everyone. Bye. Bye, sir. Bye. Bye everyone.